اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ اور کچھی کا بھی ہم نے فضائی دورہ کیا اور دوسرے علاقوں کا جل مکسی کا میں پہلے دورہ کر چکا تھا۔ جی صوبت پور جہاں آپ نے جی صوبت پور، یہ علاقے بالکل اس طرح جس طرح کہ ایک سمندر بہہ رہا ہے۔ میں ابھی جب میں جہاز پہ سوار ہوا تو راجن پور اور رحیم یار خان، پھر گھوٹکی، یعنی پانی کا ایک سمندر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2010 کا سیلاب بذات خود ایک بہت بڑا سیلاب تھا، مگر وہ دریائے سندھ اور ملکہ علاقوں تک محدود تھا۔ یہ طوفانی بارشیں جو کہ سیلاب بن کے جس نے تباہی مچائی ہے، پورے پاکستان میں یہ تباہی پھیل گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو متاثرہ جو صوبے ہیں وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان، اور اس کے بعد پرسوں کے پی میں بے پناہ بارشیں ہوئیں، جس سے سوات، دھیر، کالام، یہ سارے علاقے وہاں تباہی کا شکار ہو گئے۔ اور دریا کے اوپر جو گھر تھے یا ہوٹل تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اوپر کہ آنن فانن وہ دریا برد ہو گئے۔ اس وقت تک پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پر فصلیں کھڑی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ آج یہاں پر میں نصیر آباد میں اور یہاں پہ جعفر آباد میں جو گورنر صاحب، ایکٹنگ گورنر، مجھے بتا رہے تھے کہ فصلیں جو ہیں چاول کی بالکل تباہی کا ایک نمونہ بن چکی ہیں، اور پانی اب اتنا ہے کہ جب تک کہ وہ زمین خشک نہیں ہوگی، زیادہ پانی اب زمین کو چلا جائے تو وہ بھی کچھ خوش آئند بات نہیں ہوتی۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ ابھی میں ان ٹینٹس میں گیا ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو، مزنجو صاحب کو، ان کی زیر نگرانی ان کی ٹیم، ان کے چیف سیکرٹری، اور ہمارے جو ساری جو کولیشن پارٹی کے جو ممبرز ہیں، سب مل کر یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی، جس کیمپ پہ میں گیا انہوں نے کہا ہمیں کھانا ملا ہے، ہمیں پانی کی ایک یقیناً ایک پرابلم ہے، اس لیے کہ کوئٹہ سکر کی جو آمد و رفت کا راستہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ ابھی میں نے سیکرٹری کمیونیکیشن سے بات کی اور ان سے کہا کہ آج رات تک یا کل صبح تک یہ جس طرح بھی ہوتا ہے اللہ کے سہارے اس کو بحال کرو، تاکہ پانی کے جو جہاز وہ یہاں پر پہنچیں اور لوگوں کو پانی مہیا ہو۔ اسی طرح بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہیں وہ نقصان پہنچا ہے۔ میں نے ابھی جو منسٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے توانا پہلوان، ہمارے خرم دستگیر، ان کو سندھ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی بھی، ان سے فون پہ بات کی کہ وہ یہاں پہنچیں، ان کی ٹیم پہنچے یہاں پر، ان علاقوں میں بجلی کی جو ترسیل ہے فی الفور اس کو بحال کیا جائے۔ تو یہ سارے چیلنجز ہیں۔ کل رات کو میری بڑی مہربانی کی، ایران کے صدر میرے بھائی ابراہیم صاحب نے مجھ سے بات کی، مجھ سے ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب میرے بھائی، انہوں نے بات کی، مجھے میرے بھائی جو ہمارے یو اے ای کے صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد، انہوں نے بات کی۔ انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے جو جانیں چلی گئی ہیں ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کی، اور اس بات کا انہوں نے آفر پیش کی کہ پاکستان کے عوام کروڑوں لوگ اس وقت اس آفت میں گر گئے ہیں، سیلابی پانی میں گر گئے ہیں، انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کے ہم پلہ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ بھرپور اپنا ہاتھ بٹائیں گے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج وہاں ترکی سے جہاز روانہ ہو کے چل پڑے، جو کہ کراچی پہنچنے والے ہیں 2 جہاز۔ آج اسلام آباد میں یو اے ای سے
सामान का जहाज़ इस्लामाबाद पहुंचेगा। और इस तरह ये मैं उनका अपने इन दोस्त ममालिक के हमारे जो सदूर हैं उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस आफत की, इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ वो खड़े हैं माजी की तरह। अल्लाह ताला उनको जज़ा अता फ़रमाए और उनको और वसअत अता फ़रमाए। इसी तरह दूसरे दोस्त ममालिक का हमें पैगामात आ रहे हैं। बरतानिया के हुकूमत ने 1.5 मिलियन पाउंड का ऐलान किया। हम सब इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ से हमें मदद मिल रही है हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनके हर तरीके से उनके ममनून हैं कि इस आड़े वक्त में, वो मुसीबत के वक्त में करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए वो इमदाद जो भिजवा रहे हैं वो दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैंने सिंध में भी, परसों भी, कल भी और आज फिर बलूचिस्तान से मैं पाकिस्तान भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। इन दुखी भाइयों बहनों का आप हाथ थामें। माजी की तरह आप अपने रिज़्क़ हलाल से आप रकूम मुहैया करें। और मुझे इल्म है कि फ़ंड्स आ रहे हैं। मैं कल रात को मुझे 6 करोड़ रुपया एक शख्स ने मुझे दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। मैंने उनको कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की भी ये सुन्नत है कि आप ये दिखावे के लिए नहीं, आप जब नेक काम करते हैं और बताते हैं तो उस तशहीर का मकसद दूसरों को तरगीब देना होता है। उनका कि फिर आप हमारी तस्वीर बनवा लें, नाम हमारा फिर बना दें। तो चूँकि उन्होंने मुझे पाबंद किया, एक ग्रुप आया, उन्होंने 45 करोड़ रुपया दिया जो कि वज़ीर-ए-आज़म अकाउंट में जमा हो चुका है। आज शाम ताजरों की तंजीम मिल रही है, वो भी इस कार खैर में हिस्सा डालेंगे। ख़ुद लाखों पाकिस्तानी अपने ताईं वो ट्रक भिजवा रहे हैं इमदाद का, पानी, खुराक, कंबल, अद्वियात, डॉक्टर्स, नर्सें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे और आपके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करे। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। यानी देहातों के देहात सफ़े हस्ते से मिट गए हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया कि 1000 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और हज़ारों ज़ख्मी हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए, उनके मकान उजड़ गए। अभी मैं इन कैंप्स में गया हूँ, सब ये कह रहे हैं कि मकान हमारे उजड़ गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म हमें हमारे मकानों का, मैंने कहा कि 25,000 रुपया पूरे पाकिस्तान में हर मुतासरा ख़ानदान को वफाकी हुकूमत दे रही है और ये 38 अरब रुपये बनते हैं। और इस 25,000 रुपये को हम शफाफ तरीके से NDMA और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, ये जो चैनल्स हैं इनके ज़रिए हम तकसीम कर रहे हैं ताकि हकदार रह न जाए और नाहक को ये रकम न मिले। तो ये इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में 38 अरब रुपया तकसीम होगा और इंशाअल्लाह मुझसे सेक्रेटरी बिस्प ने और चेयरमैन NDMA ने वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद मज़ीद जो तखमीना है नुकसानात का उसको भी हम देखेंगे। इसी तरीके से मैंने अभी मुझे प्रेजेंटेशन दी है जनाब वज़ीर आला क़ुद्दूस बज़िंदो साहब ने, उनके चीफ मिनिस्टर ने, और जो तबाही हुई चीफ सेक्रेटरी ने, और जो तबाही हुई है वो हम सब ने देखी वो प्रेजेंटेशन। तो जिस तरह मैंने 2 दिन पहले सिंध में बेपनाह तबाही हुई है सिंध में, मैं आज भी जब सक्कर से हम लैंड कर रहे थे सक्कर एयरपोर्ट पर, तो बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि चारों तरफ इस तरह लग रहा था कि दरिया सिंध जो है वो ठाठे मारता हुआ समंदर हर तरफ तबाही मचा रहा है। तो मैंने वहाँ पर 15 अरब रुपए की मैंने वहाँ पर जो ग्रांट उसका ऐलान किया कि NDMA जनरल अख्तर नवाज़ मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सूबाई वज़ीर आला का, चाहे
बदनजो साहब हैं, चाहे हमारे भाई चीफ मिनिस्टर सिंध हैं शाह साहब का, और बाकी वज़राए आला का, उनकी टीम्स का, उनकी PDMS का, कि वो दिन रात लगी हुई हैं, उनकी रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं। आज यहाँ पर मैंने जो हेल्थ के जो मैंने देखे हैं, यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं, मेडिकल सेंटर्स अपना इंसानों के लिए भी, और जो वेटनरी जो वो भी देखे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और वेटनरी एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो इन सब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह मैंने आपको चंद रोज़ पहले बताया था कि मेरी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से बात हुई, मेरी नेवल चीफ से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने अहकामात दे दिए और फील्ड में उनकी फॉर्मेशंस जा चुकी हैं और दिन रात लोगों को वो पानी से निकाल कर महफूज मुकाम तक पहुंचा रही हैं। हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, बोट्स लगी हुई हैं। कल रात को मेरी एयर चीफ से भी बात हुई, एयर चीफ ज़हीर से, और उन्होंने मुझे ये तफसील बताई कि किस तरह उनके हेलीकॉप्टर्स दर्जनों इस वक्त फील्ड में हैं, और जो ही मौसम जहाँ बेहतर होता है वो पहुँचते हैं और रिलीफ का काम शुरू करते हैं। इस वक्त तक तकरीबन 50,000 लोगों को महफूज मुकाम तक पहुँचाया जा चुका है। और ये काम आज मौसम बेहतर है तो नेवी के और आर्मी के और एयर के जो अपना हेलीकॉप्टर्स वो इस वक्त दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का भी। तो आज अब इंशाअल्लाह कल हमारी मीटिंग है इस्लामाबाद में, और फ्लड्स के हवाले से हम इंशाअल्लाह सारे मामलात का बगौर जायज़ा लेंगे, और मीडियम और देरपा जो हमारे जो इक़दामात हैं उनका हम फैसला करेंगे। ताकि देखिए 2010 में सैलाब आया और अब 2022 में ये चारों सूबों में सैलाब आया, और इस बारिशी सैलाब हो या दरियाई सैलाब हो, इसको रोकथाम के लिए दुनिया के ममालिक ने बड़े काम किए हैं और बहुत हद तक उन्होंने रोकथाम की है। मगर ये काम बातों से, नारों से, तकरीरों से, इल्ज़ामात लगाने से नहीं होगा। ये मट्टी के साथ मट्टी बनकर होना होगा, और दिन रात अमली काम करना होगा, खून पसीना बहाना होगा। तब ये हम उस हालत में पहुंचेंगे जहां पर वो अक़वाम पहुंच चुकी कि बड़े बड़े फ्लड्स को उन्होंने रोका है, और अपनी तकनीकी, अपनी मेहनत और सरमायाकारी से रोका है, और आज वो बहुत हद तक नुकसानात से बच गए हैं। तो बातें करके, गलत इल्ज़ामात लगा के, झूठ बोल के आप कौम को कब तक धोखा और फरेब देंगे? ये मुझसे नहीं हो सकता। जो गलती मुझसे हुई है मैं उसकी माफ़ी मांगूंगा, जो सच्ची बात वो करूंगा, और झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ामात वो कब तक? हम 75 साल हो गए, पाकिस्तान आज तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका। तो मेरी कौम से गुजारिश है कि वो इस वक्त वो दुआ भी करे और दवा भी करे। मैं आपसे वादा करता हूँ अपने साथियों के साथ कि इंशाअल्लाह हम मिलकर दिन रात काम करेंगे, और जब तक कि आपका आखिरी ख़ानदान बाहर नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज मैं जनाब बदनजो साहब की खिदमत में वफाक की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ, और NDA में मिलकर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी हुकूमत से मिलकर यह प्लान तैयार करेगी, ताकि चाहे इन्होंने फसलों का नुकसान वो कॉम्पनसेट करना है, चाहे इन्होंने सड़कात बनानी है, चाहे इन्होंने पक्के घर बनाने हैं, या इन्होंने 5 लाख, ये इनकी मर्ज़ी है, ये देंगे। NDA के चेयरमैन और PDMA सूबे की मिलकर ये प्लान बनाएंगी, और मुझे 100% यकीन है इंशाअल्लाह कि ये इस वक्त इनकी ज़ात और इनकी हुकूमत और तमाम साथी मिलकर इंतहाई ईमानदारी से आपको आपका हक़ पहुँचाएँगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आबाद होगा, पाकिस्तान ज़रूर मजबूत होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, पानी का एक समंदर चारों तरफ फैला हुआ है। मुझे अब इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा सूरत हाल 2010 के सैलाब से ज़्यादा गंभीर है।